Good morning, students. Today we'll start our seventh chapter, that is dictionaries. In this chapter, you will learn what is dictionary. That you means introduction, dictionary key value pairs, working with dictionaries, and dictionary functions and methods. Right? As you know, that Python offers many different ways to organize collections of data items such as string, list, dictionaries, tuples, etc. And we have already worked with the string, list, and tuples. In this chapter, it's time to learn about the dictionaries. Okay? So first of all, let us know what is dictionaries. Dictionaries are mutable, unordered collections with the elements in the form of a key value pairs that associate keys to values. Mutable means where we can change the value, right? So, dictionary key value pair. Among the built in Python data types is a very versatile type called a dictionary. Dictionaries are simply another type of a collection of Python, but with a twist. Rather than having an index associated with each data item, dictionaries in Python have a key and a value of that key. That is, Python dictionaries are a collection of some key value pairs, right? Dictionaries are the containers that associate keys to values. This is in a way similar to lists. In lists, you must remember that the index values of an element from the list, but with the case of dictionaries, you will have to know the key to find the element in the dictionaries. So all this will become clear to you in this coming session. So let's first creating a dictionary. How we can create a dictionary? To create a dictionary, we need to include the key colon value pairs in the curly braces as per the following syntax. सबसे पहले आप कोई डिक्शनरी का नाम लिखेंगे, जैसे आप लिस्ट का नाम लिखते थे, राइट? कोई भी वेरिएबल का नाम मीन्स इक्वल टू, देन यू हैव टू स्टार्ट द करली ब्रेस. करली ब्रैकेट आपको यूज़ करनी है इसमें. फिर आप की कोई वैल्यू लिखेंगे, देन कॉलन लगाएंगे, फिर वैल्यू 1 मीन्स आप फर्स्ट की और फर्स्ट वैल्यू लिखेंगे. इसी तरह से की वैल्यू और लास्ट में आप करली ब्रेस को क्लोज कर देंगे, राइट? सो फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल डिक्शनरी बाय द नेम टीचर्स दैट स्टोर्स द names of teachers as keys and the subject being taught by them as values of respective keys. So teachers is a variable name, or we can say dictionary name, where we will store all the keys and values. Dimple, whatever name is, dimple is the key. Computer science is the value. Second, this is the name and value. Harpreet, mathematics, this is the name, or we can say key is the Harpreet, or mathematics is the value. So in such a way you can provide any number of keys and value pair to create a dictionary. Students, it is very simple to create a dictionary. Just you keep in mind that you have to give a variable name, then equal to, use the curly brace, then any key, then colon, then value, key colon value, and enclose it in the last curly brace, right? Notice that the curly brackets mark the beginning and end of the dictionary. Each entry, or we can say key colon value, consists of a pair separated by a colon. The key and corresponding value is given by writing colon between them, and the key value pairs are separated by comma, right? As you can see,
there are four key values pairs in this about dictionary that we discussed now. You can see this is the key value pair: Dimple computer science, Karen sociology, Harpreet mathematics, Sabah legal studies. सो जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो आपकी की होती है, कॉलन के बाद जो कुछ लिखा जाता है वो आपकी वैल्यू होती है. तो ऑलवेज यूज द की कॉलन वैल्यू पेयर टू क्रिएट द डिक्शनरी, राइट. दिस इज नोट फॉर यू. इंटरनली डिक्शनरीज आर इंडेक्स्ड और अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ कीज. स्टूडेंट्स, you can see some more examples of the dictionary. Suppose dict 1 equal to curly brace start and close. There is no value is given, so means it is an empty dictionary with no element. Next, days in months. ये खाली एक वेरिएबल का नाम है, डोंट बी कन्फ्यूज्ड. आप कोई भी नाम रख सकते हैं. curly brace start, that then January is the key, then colon 31 is the value. अगर कोई वैल्यू आप स्ट्रिंग में देंगे यानी कि न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है तो आप उसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में एनक्लोज करना है, राइट. सिमिलरली सेकेंड की है आपकी February, देन 28 इज वैल्यू, March is the next key and 31 is the value. So in this way you can provide the key and values for a dictionary. Suppose bird count is also a variable name, or this is a dictionary name where we will store the different value keys and values of the dictionary. So now you can easily identify the keys and corresponding values from the given dictionary, right. Dictionaries are also called associative arrays or mappings or hashes. If you try to give a mutable type of key as a key, Python will give you an error or unhashable type. For example, dict 3 equal to curly brace और उसके अंदर आपने एक लिस्ट पास कर दी, then colon ABC. अब ये तो कोई की नहीं हुई, so you will get type error message. Let's try to understand it with an example. This is a program. Write a program to read roll numbers and marks of 4 students and create a dictionary from it having roll number as a key. तो key आपको roll number लेना है. So what to do? You have take two variables RNO for roll number, MKS और marks equal to, और आपने बिल्कुल ब्लैंक इसको रख दिया है. तो ये दो वेरिएबल आपने डिक्लेयर कर दिए. इसमें एरे आप कोई कितनी भी वैल्यू बाद में एंटर कर सकते हैं. फॉर ए इन रेंज 4. अब ये 4 क्यों लिखा? क्योंकि आपको 4 वैल्यू इसके अंदर देनी है, 0 1 2 3. R, M इक्वल टू ईवेल फंक्शन का यूज़ मैंने लास्ट में टाइम भी बताया था कि अगर हम कोई भी वैल्यू इनपुट करते हैं लिस्ट में या इस तरह से लिस्ट में कोई भी वैल्यू इनपुट करेंगे तो वो उसको स्ट्रिंग वैल्यू लेगा. भले ही हम उसके अंदर इंटीजर वैल्यू पास करें बट उसको स्ट्रिंग में लेगा. तो हम चाहते हैं कि उसके अंदर इंटीजर वैल्यू पास हो, तो उसके लिए आपको ईवेल फंक्शन का यूज़ करना है. तो R, M दोनों के अंदर, रोल नंबर के अंदर भी और मार्क्स के अंदर भी जो आप वैल्यू डालेंगे, ठीक है, उसको ईवेल फंक्शन के साथ आपने एंटर करवा लिया, रोल नंबर और मार्क्स. और RNO डॉट अपेंड, आपको पता कि अपेंड फंक्शन क्या काम करता है, लिस्ट में ऐड कर देता है वो वैल्यू. तो ये दोनों वैल्यू R की वैल्यू रोल नंबर में ऐड हो जाएगी और M की वैल्यू MKS जो वेरिएबल मार्क्स के लिए आपने लिया है उसके अंदर ऐड हो जाएंगी. फिर आपको लिखना है D इक्वल टू, ये हम यहाँ डिक्शनरी क्रिएट कर रहे हैं उसकी हेल्प से, उसके वेरिएबल का नाम हमने D रख लिया. D इक्वल टू, आपको पता है कि डिक्शनरी बनाने के लिए हमको करली ब्रेस चाहिए, तो करली ब्रेस स्टार्ट किया, फिर आपने लिखा RNO 0. इसका मतलब फर्स्ट जो वैल्यू होगी आपकी उसकी वैल्यू आप यहाँ पे आएंगे, MKS 0, मार्क्स की जो फर्स्ट वैल्यू होगी जिसका इंडेक्स हम 0, क्योंकि लिस्ट में जो इंडेक्स होता है वो 0 से स्टार्ट होता है,
ठीक है। इस तरह से रोल नंबर 1 2 3 राइट, इस तरह से मार्क्स और रोल नंबर की वैल्यू आपको इनपुट करनी है। फिर आपको लिखना है प्रिंट क्रिएटेड डिक्शनरी और डी को प्रिंट करना है। तो इन दिस वे वी कैन क्रिएट ए डिक्शनरी बाय एंटरिंग द रोल नंबर एंड मार्क्स वैल्यू। यू कैन सी हाउ वी कैन एंटर रोल नंबर एंड मार्क्स। तो आपको रोल नंबर, पहला रोल नंबर डाल दिया और फर्स्ट रोल नंबर के लिए आपने मार्क्स एंटर कर दिए। सिमिलरली आपने सेकंड, थर्ड और फोर्थ रोल नंबर के लिए मार्क्स एंटर कर दिए। तो जब आपकी डिक्शनरी क्रिएट होगी तो यू कैन सी इन दिस वे योर डिक्शनरी विल बी क्रिएटेड। या तो आप सीधी वैल्यू दे के डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हैं या इस तरह से प्रोग्रामेटिकल वे में भी आप डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हैं, राइट। ओके, नाउ लेट्स कम टू नो एक्सेसिंग एलिमेंट्स ऑफ ए डिक्शनरी। While accessing elements from a dictionary, you need the key. While in list, the elements are accessed through their indexes. आपने लिस्ट में देखा होगा कि हम उसके किसी भी वैल्यू को अगर एक्सेस करना है तो उसके इंडेक्स से करते हैं, बट डिक्शनरी में जो भी वैल्यू आप एक्सेस करोगे वो की से करेंगे। इन डिक्शनरीज द एलिमेंट्स आर एक्सेस थ्रू द की डिफाइंड इन द की वैल्यू पेयर्स एज पर द सिंटैक्स गिवन बिलो। डिक्शनरी का नाम लिखना है पहले आपको और फिर आपको की पास करनी है उसके अंदर। सो द वैल्यू एक्सेस द वैल्यू फॉर की डिफाइंड एज करेंट इन अबव डिक्लेयर्ड टीचर्स। आपने देखा हुआ ये नाम दिया हुआ था वहाँ, ठीक है। सो आप क्या करेंगे, पहले डिक्शनरी का नाम लिखेंगे और फिर उसकी की को पास करेंगे उसके अंदर। Current is the key and their value is the sociology. Similarly, following statement print current teachers comma teachers current, यानी कि ये वाला टीचर सोशियोलॉजी रीड करता है, टीच करता है। इस तरह से आप कोई भी दूसरा नाम दे सकते हैं, वो की आपको पास करनी है डिक्शनरी के नाम में। यू कैन सी हाउ। While giving key inside square brackets gives you access only to the value corresponding the mentioned key, मतलब जिसकी भी आप की पास करेंगे उसी की वैल्यू आपको शो करेगा। Mentioning the dictionary name without any square brackets print or displays the entire contents of the dictionary. Consider the following example. D is a name of dictionary. Vowel 1 A, vowel 2 E, vowel 3, vowel 4, vowel 5, etc. Right? So एक डिक्शनरी हमने क्रिएट कर ली। डिक्शनरी D contains the 5 की वैल्यू पेयर्स। अगर हम D को प्रिंट करेंगे तो इस तरह से 5 की वैल्यू पेयर्स आपको शो करेगा। नाउ प्रिंटिंग द कंटेंट्स ऑफ डिक्शनरी D, नोटिस द ऑर्डर ऑफ कॉलम्स इज़ डिफरेंट फ्रॉम देयर इनपुट ऑर्डर। जब आप इसको प्रिंट करेंगे तो इसका ऑर्डर डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। जैसे देखिए उसमें आपने वावल 1 दिया था, यहाँ पे वावल 5 पहले आ रहा है, वावल 4, वावल 3, वावल 2, वावल 1, इस तरह से किसी भी ऑर्डर में ये आ सकती है। अगर आपने दिया D वावल 1 तो D आपकी डिक्शनरी का नाम है, वावल 1 आपका एक की वैल्यू है। तो इसके अंदर तो वावल 1 आपने की पास कर दी तो इसकी जो भी वैल्यू है A वो उसने प्रिंट करके दिखा दी। D वावल 4 ये आपने की पास की तो उसकी वैल्यू जो O है वो उसने शो करा दी। सो एक्सेसिंग एलिमेंट्स यूजिंग देयर की वावल 1 एंड वावल 4 आर द कीज यूज टू एक्सेस कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज। नोटिस दैट keys given here are in quotation mark are of string type। तो कुछ की हो सकती हैं आपकी जो स्ट्रिंग वैल्यू हैं तो उन पे आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाना है, राइट। सो एज पर द एग्जाम्पल वी कैन से दैट की ऑर्डर इज नॉट गारंटीड इन पाइथन। दिस इज बिकॉज इन पाइथन डिक्शनरीज द एलिमेंट यानी कि की वैल्यू पेयर्स आर unordered. One cannot access element as
As per the specific order, the only way to access a value is through the key. So we can say that keys act like indexes to access values from a dictionary. Attempting to access a key that does not exist cause an error. अगर हम कोई ऐसी की पास करते हैं जो इसमें अवेलेबल नहीं है तो वो आपको एरर मैसेज देगा. सपोज D13, अब 13 कोई की अपने पास है ही नहीं तो इट विल गिव एन एरर मैसेज. In Python dictionaries, the elements or key value pairs are unordered. One cannot access element as per specific order. They are only accessed with the help of keys. Dear students, you can understand the key values with this diagram. References of keys and values are stored in a dictionary. Of left side, the value given at the left side are the keys and value given at the right side or after colon that are values, right? Let's take an example. Consider the dictionary created in the previous program. अभी हमने जो प्रोग्राम बनाया था रोल नंबर और मार्क्स एंटर किए थे. Modify the previous program to check if the roll number 2 has scored more than 75 marks or not. So since roll number is the key of the dictionary, D2 will give us the marks of key 2. जो प्रोग्राम आपने पहले बनाया था वो एज इट इज लिखना है यहाँ पे. कोड ऑफ प्रोग्राम 1. देन यूज़ द इफ़ कंडीशन. इफ़ डी क्या है इसमें, डिक्शनरी का नाम है. 2 क्या है इसके अंदर, आपकी कीज है. ग्रेटर देन 75, अगर जिसके ऊपर 2 की है उसकी वैल्यू 75 से बड़ी है तो प्रिंट रोल नंबर 2 स्कोर्ड जो भी है 75 से ग्रेटर और वट एवर, नहीं तो लेस देन 75. ओके. जो फर्स्ट प्रोग्राम अभी हमने बनाया था उसी के अंदर हम इसको और ऐड कर देंगे तो थोड़ा सा प्रोग्राम और इंक्रीज हो जाएगा. और उसमें इफ़ कंडीशन से आप किसी के मार्क्स भी चेक कर सकते हैं, राइट. नाउ लेट्स कम टू नो ट्रैवर्सिंग ए डिक्शनरी. अब ट्रैवर्सिंग का मीनिंग क्या होता है. मीन्स टू एक्सेस ऑल द एलिमेंट्स. Traversal of a collection means accessing and processing each element of it. Thus, traversing is a dictionary also means the same and same in the tool for it. The Python loops. इसको भी हम traversing के लिए सारे के सारे एलिमेंट एक्सेस करने के लिए हम for loop का यूज़ करेंगे, जैसे हमने लिस्ट में किया था, राइट. The for loop makes it easy to traverse or loop over the items in a dictionaries. कैसे लिखेंगे इसको. for, then item, then in, then dictionary. Okay. So in this way we can use it. We can traverse all the data. जैसे for की का मतलब जो भी की और वैल्यू पेयर देते हैं आप. in फिर डिक्शनरी का नाम और फिर भी आपको जो कुछ प्रिंट करना है. तो फोर लूप की जब तक फोर लूप काम करेगा ये प्रिंट स्टेटमेंट आपकी चलती रहेगी, राइट. लेट्स टेक अनदर एग्जांपल हाउ टू क्रिएट डिक्शनरी. सो राइट ए प्रोग्राम टू क्रिएट ए फॉन्ट डिक्शनरी फॉर ऑल योर फ्रेंड्स एंड प्रिंट ईच की वैल्यू पेयर इन द separate lines. So font dict, this is a variable or we can say dictionary name where we will store all the values. Madhav is a key, 1 2 3 4 5 6 7 is the value. In the same way all others keys and value pairs are given and in the last close the curly brace. For name in font dict कोई भी वेरिएबल का नाम ले सकते हैं आप. फॉर नेम की जगह कोई और ले सकते हैं. सो प्रिंट नेम यानी कि फॉर लूप का जो भी वेरिएबल है उसका नाम, उसके बाद आपको जो कुछ भी अपनी तरफ से प्रिंट करना है उसको इन्वर्टेड कॉमा में इनक्लोज करना है. जैसे आपने कॉलन प्रिंट कर दिया फिर कॉमा फॉन्ट डिक्ट. ये फॉन्ट डिक्ट आपको डिक्शनरी का नाम देना है और ब्रैकेट में वो वेरिएबल वो पास करना है करली ब्रेस के अंदर, इसके अंदर स्क्वायर ब्रेस के अंदर. नेम जो है वेरिएबल का नाम, अगर आपने वेरिएबल का नाम एन लिया है तो आप एन पास कर देना, राइट.
the above output by above program will be shown as whatever name you are given, the value will be displayed accordingly. Dictionary, as you know, dictionaries are unordered set of elements. The printed order of elements is not same as the order you stored in the element in it. मतलब जिस ऑर्डर में आपने कीज़ और वैल्यूज़ को स्टोर किया था, ज़रूरी नहीं है कि उसी सेम ऑर्डर में आपका आउटपुट आएगा, वो किसी भी तरीके से ऑर्डर होके आ सकता है. एज यू कैन मेक आउट फ्रॉम द आउटपुट दैट द लूप वेरिएबल नेम गॉट असाइंड द कीज़ ऑफ द डिक्शनरीज फाउंड इट वन एट ए टाइम. वो हर बार एक एक रिकॉर्ड को पिकअप करता रहेगा. जब तक आपका लूप चलेगा तब तक ये सारे के सारे रिकॉर्ड प्रिंट होते रहेंगे. राइट. एक्सेसिंग कीज और वैल्यूज साइमल्टेनियसली. टू सी ऑल द कीज इन ए डिक्शनरी इन वन गो you may write dictionary name dot keys function, and to see all values in one go you may write dictionary dot values function as shown below. Right. For example, d dot keys ब्रैकेट स्टार्ट एंड क्लोज का मतलब फंक्शन, तो उसने सारी की सारी कीज शो करा दी. d डॉट वैल्यूज ब्रैकेट स्टार्ट एंड क्लोज लिखोगे तो सारी की सारी वैल्यूज आपको शो करा देगा. एज यू कैन सी दैट कीज फंक्शन रिटर्न्स ऑल द कीज and value function returns all the values that are defined in the dictionary. You can convert the sequence returned by the keys function and the values function by using list. आप उसको लिस्ट में सीक्वेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं. लिस्ट एक फंक्शन का नाम है. डी डॉट कीज आपने पास कर दिया तो वो लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगी. इस तरह से लिस्ट डी डॉट वैल्यूज़ पास कर दिया तो जो भी आपकी वैल्यूज़ थी वो लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगी. आपको पता है कि लिस्ट की जो वैल्यू है वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आती है. फॉर एग्जांपल, गिवन ए डिक्शनरी एम विच स्टोर्स द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास with roll number as the keys and marks as the values. Write a program to check if anyone has scored marks as 89.9 or something whatever. So code to create a dictionary. पहले आपको यहाँ डिक्शनरी क्रिएट करनी है जैसे आपने फर्स्ट प्रोग्राम में की थी. Then if 89.9 in m dot values print yes someone has scored it, means you have to use the if condition or else if or else condition. So in this way we can find the record accordingly. Right. I hope now it is clear to you ki how we can create the dictionary. Okay students.